Dutch scientific forestry. In the 9th century, when it became important to control territory, territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in Java, restricting villagers' access to forests. Villagers were punished for grazing cattle in young stands, transporting wood without a permit, or traveling on forest roads with horse carts or cattle. As in India, the need to manage forest for shipbuilding and railway lead to the introduction of a forest service. In 1882, 280 280,000 sleepers were exported from Java alone. The Dutch first imposed rents to land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these rents if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. This was known as the Blongedius system. Later, instead of rent expansion, forest villagers were given small wages, but their right to cultivate forest land was restricted. डच वैज्ञानिक वानिकी किस तरह से की गई? 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों को जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। ग्रामीणों को मवेशी चराने बिना परमिट, लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ागाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा और उन्हें सजा दी जाने लगी। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज़ों और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए मजदूरी की आवश्यकता होती है। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। यह उनके सामने शर्त रखी गई। इस व्यवस्था को ब्लेंडाडियनस्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफ़ी की बजाय थोड़ा बहुत मेहनत ताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। सामिन्स चैलेंजेस, यानी सामिन की क्या चुनौतियां थी उनके विरुद्ध में? अराउंड 1890 Surantoquist Samins of Rendu Blanting village, a teak forest village, began questioning state ownership of the forest. He argued that the state had not created
the wind, water, earth, and wood, so it could not on it. Soon a widespread movement developed. Amongst those who helped organize it were Samin's sons-in-law. Some of the Saminists protested by laying down on their land when the Dutch came to survey it, while others refused to pay taxes or fines or perform labor. सामिन की चुनौती डच सरकार के प्रति क्या थी? सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदुब्लातुंग गांव के निवासी सुरांतिको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका मानना था कि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही इसके विरोध में एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन के साथ अन्य लोग भी सक्रिय थे। 1907 तक 3000 परिवार उनके विचारों को मानने लगे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो साम्यवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। War and deforestation. The First World War and the Second World War had a major impact on forests. In India, working plans were abandoned at this time, and the Forest Department cut trees freely to meet British war needs. The Dutch followed a second earth policy, destroying sawmills and burning huge piles of grand teak logs so that they would not fall into Japanese hands. The Japanese then exploited the forests recklessly for their own war industries, forcing forest villagers to cut down forests. As in India, people's need for agricultural land has brought them into conflict with the forest department's desire to control the land and exclude peoples from it. युद्ध और वन विनाश कैसे हुआ? पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया।
जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर करने की वन विभाग की जीत के बीच टकराव पैदा हुआ। न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री। Since the 1980s, governments across Asia and Africa have begun to see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflicts. Conservation of forest rather than collecting timber has become a more important goal. The government has recognized that in order to meet this goal, the people who live near the forest must be involved. Some villages have been patrolling their own forest, with each household taking it in turns, instead of leaving it to the forest guards. Local forest communities and environmentalists today were thinking of different forms of forest management. इस तरह वन विद्रोहों के कारण वानिकी में नए बदलाव किस तरह से आए। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियाँ के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणामस्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन जाता है। सरकार ने यह भी माना कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर हिंदुस्तान, केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी अपने आप करते रहे हैं। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में भी सोचने लगे हैं। इस तरह वन संरक्षण विकसित हुआ और आज लोग इसको बचाने के लिए जागरूक होते जा रहे हैं।